नौजवानों के अंदर एक भाव जाग रहा है। जो लोग पार्टियां मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, वो एक दिन हारेंगी। যোৱাকালি এই ক্লাছ 9 কেইটামান ল'ৰাই তাৰমানে টিফিনৰ সময়ত তেওঁলোকে নিষিদ্ধ মাংস অনা বুলি আমি কওঁ স্কুলখনে বুজাব। আমি ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে বাঞ্ছনীয় এটা ঘটনা এটা হৈছে, এইটো হ'ব নালাগিছিলে। दोस्तों अभी मैं आ रहा था तो शोले का एक गाना चल रहा था। गाना था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अब आगे की लाइन सुनिएगा। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। जी हाँ, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। ये कहानी थी, ये गाना था। 1975 में फिल्म आई थी, गोल्डन जुबली हुई थी। लेकिन आज के दौर में 2026 में ना खाना पीना साथ है, ना दोस्ती रही है। कहानी कहाँ से शुरू होती है समझिए। असम के गोलापाड़ा ज़िले के हाबरघाट हायर सेकेंडरी स्कूल में जुड़ा एक विवाद इन दिनों राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। खबर इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 9 के 5 मुस्लिम छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने अपने टिफ़िन में लाया गया कथित बीफ 2 हिंदू सहपाठियों को खिलाने की कोशिश की। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने एक छात्र की मां साहिदा बेगम को गिरफ्तार किया। छात्रों से पूछताछ शुरू हुई। स्कूल प्रबंधन ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया। যোৱাকালি এই ক্লাছ 9 কেইটামান ল'ৰাই তাৰমানে টিফিনৰ সময়ত তেওঁলোকে নিষিদ্ধ মাংস অনা বুলি মই গম পালোঁ। আমাৰ বেলেগ এজন শিক্ষক মহিবুল ছাৰ, তেখেতে এই বস্তুটো গম পোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাকেইটাক মোৰ অফিচত কাম কৰি থকা অৱস্থাত মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে আৰু সেইখিনি তাতে আমি বহি মোৰ চিনিয়ৰ টিচাৰবিলাকক লগত লৈ এই ল'ৰাকেইটাক অলপমান শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ কি যাতে ভুল কাম নকৰে তাৰ কাৰণে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লিখি মানে চাইন কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছতে সেই ঘটনাটো আমি কৰিলোঁ গোটেই ষ্টাফ মাতি হলতে বহি আমি আৰু মানে বস্তুটো কি কৰা যায়, এই ঘটনাটো এটা বহুত জটিল ঘটনা বুলি আৰু আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে সেইকাৰণে আমি এটা কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈ যে বস্তুখিনি যাতে বেছি বহলাই নাযায়, এটা মানে অপ্ৰীতিকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি নহয়, সেইকাৰণে আমি ষ্টাফৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি এনেকৈ এটা কি লিখি তাতে কৰোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে ৰেহাই দিয়া হ'ল যে মানে আইনৰ আওতাত যাতে দিয়া নহয়। আমাৰে যিহেতু সৰু ছাত্ৰ বুজি নাপায়, কিন্তু মোৰ বোধেৰে ইয়াতে মানে মই এটা অনুমান কৰিছোঁ যে এই ল'ৰাবিলাকৰো ভুল হোৱা নাই বা আমাৰ ছাইডৰ পৰাও ভুল নহয়, কিন্তু এইখিনি তেওঁলোকৰ গাৰ্জিয়ানে সচেতন থাকিব লাগিছিল। যিহেতু নিষিদ্ধ মাংস, সেই নিষিদ্ধ মাংসটো তেওঁলোকে স্কুলত পঠিয়াব নালাগিছিল। এই ঘটনা বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ হয় হয়, তাৰমানে আৰু কৰিছে কি যে যি ল'ৰাকেইটাই আনিছে তেওঁলোকে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু কেইটামান হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰাক মানে জোৰ জবৰদস্তি যায়, মানে সিহঁতৰ লগত অলপ কাজিয়া হোৱা থাকে, তোমালোকক এই নিষিদ্ধ মাংস খুৱাই দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে। সেইটো বহুত অন্যায় হৈছে। वहीं दूसरी ओर स्थानीय समुदाय के कुछ लोग और संगठनों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को सामने लाना ज़रूरी है। इसी विवाद के बाद प्रशासन ने स्कूल में मांस मछली लाने पर रोक लगाने तथा केवल अंडे की अनुमति देने जैसी सलाह भी जारी कर दी। আমি কওঁ স্কুলখনে বুজাব। আমি ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা হৈ গোটেই বস্তুটো ঘটনাটো বুজি ল'লোঁ আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু আইনগত যি ব্যৱস্থা আছে আমি সেইখিনি অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি তদন্তৰ শেষত যি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া থাকে সেইখিনি আমি লওঁ। এনেকুৱা ঘটনা যদি আৰু নহয়, তাৰো যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে তাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডাইৰেকশ্যন দিছে। আমি এনচিঅ'ৰ কৰিম যে এনেকুৱা ঘটনা আৰু জিলাত আৰু নহয়। এনেকুৱা অলৰেডি আৰম্ভ হ'লেই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দুজন ইয়ালৈ আহিছোঁ। এই ব্যৱস্থাটো চাইছোঁ, কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে সেই বস্তুটো চাব লাগিব। গোটেই বস্তুখিনি পৰ্যালোচনা কৰি আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আইনগত গোটেইখিনি লোৱা হ'ব।
तारीख 5 जून थी। गोलपाड़ा ज़िले के हाबरघाट हायर सेकेंडरी स्कूल के लंच ब्रेक के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 9 के 5 मुस्लिम छात्र अपने साथ टिफ़िन लेकर आए थे। आरोप है कि उनके टिफ़िन में बीफ था और उन्होंने अपने 2 हिंदू सहपाठियों को वो खाना खिलाने को कहा। बाद में ये मामला स्कूल की 4 दीवारी से निकलकर अभिभावकों, स्थानीय संगठन और प्रशासन तक पहुंच गया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। एक छात्र की मां सहिदा बेगम को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग छात्रों को किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत पूछताछ के लिए लिया गया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बैठक बुलाकर छात्रों को संभावित निष्कासन पर चर्चा शुरू कर दी। हालांकि मामले को लेकर अलग अलग पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि जांच पर आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। बांछनीय घटना এটা হৈছে, এইটো হ'ব নালাগিছিলে। অতদিনে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাইজকো কৈছোঁ বা স্কুল কৰ্তৃপক্ষক মই সকিয়নি দিছোঁ যে ভৱিষ্যত এইটো প্ৰথম কথা হ'লে ভৱিষ্যত এইটো যাতে নহয়, দৰকাৰ হ'লে টিফিন চেক কৰিব। আৰু মই ইনস্পেক্টৰ স্কুলক অলৰেডি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে তেওঁলোকে 8-9ৰ যি ল'ৰা ছোৱালী খানা আনিব মেক্সিমাম কণী আনিব দিব, তাতকৈ মাছ মাংস কোনো আনিব নোৱাৰে। ভেজে খাব, দালি ভাত ভাজিয়ে খাব, তথাপি পেকৰ এইকেইটা মই কথা কৈছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ আৰু এটা কথা মই গোটেই মাষ্টৰসকলক এইটো সকিয়নি দিছোঁ যে এইটো বস্তু যাতে নেক্সট টাইম নহয়। 2 নম্বৰ ইয়াৰ ইনকুৱাৰী এটা নিশ্চয় আমাৰ SP মহোদয় অলৰেডি কেছ এটা FIR ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, এইটো কৰা হ'ব। আৰু আমাৰ ৰাইজৰ যি কথা মই কথা পাতি গম পাইছোঁ আৰু ময়ো এইটো ভাবোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীটোতকৈ অভিভাৱকসকল বেছি দায়ী আৰু কৰ্তৃপক্ষ বেছি দায়ী। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এইটো নিশ্চয় কিবা এটা নাই, সেইটো এটা বেয়া বস্তু, সেইটো আৰু এটা বেয়া বস্তু। সেইটো মানে সেইটো কৰিব নালাগিছিলে। মই বুজি পাওঁ তেওঁলোকে ভয়তে সেইটো কৰিছে চাগে, কিন্তু ইয়াৰ কোনোবা এটা শাস্তিটো পাবই লাগিব। মই ল'ৰা ছোৱালীতকৈ মই দোষী ভাবোঁ, মই পাৰ্চনেলি যদি মোক বুলি ভাবে মই দোষী, অভিভাৱকসকল আৰু স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষক মই বেছি দোষী বুলি ভাবোঁ। ৰাইজক এইটোৱে জনাইছোঁ যে ৰাইজে এইবিলাক বেছি হুলস্থুল কৰিব নালাগে। আমি ধুনীয়াকৈ নিয়মীয় যোনটো আমাৰ FIR যিহেতু হৈছে, ইয়াৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা আমাৰ SSP মহোদয় ৰাতিৰ পৰা তেওঁ মানে চিন্তিত। মোক ৰাতিও 2-3 বাৰ তেওঁ ফোন কৰি জনাইছে এই কথাখিনি যে এনেকুৱা অগ্ৰগতি হৈ আছে, এনেকুৱা কথা হৈ আছে। গতিকে মই ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ৰাইজে যদি এতিয়া যদি চবে যদি নিজে যদি কৰিব খোজে এইটো এটা বেয়া এটা মেছেজ যাব। চ' আমাৰ ওপৰত এটা ভৰসা ৰাখিব লাগে, আমি কৰি আছোঁ, সেইমতে আমি এইটো বস্তু ইনকুৱাৰী দিছোঁ। এইটো কৰিব, আমাৰ কৰি মেলি এইটো প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰী এটা মই ইনস্পেক্টৰ স্কুলক কৰিব দিছোঁ। আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ADC এজনো আহিব, এইটো চাব। আৰু পুলিচে কৰিবই। ইয়াৰ ভাৱে 2-এজনটো মই ভাবোঁ এইটো হ'বই লাগে। প্ৰধান শিক্ষক আৰু এজন শিক্ষকে যে ঘটনাটো গা পিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সেইটো মই চাম। এতিয়া একো ক'ব পৰা নাই। মই কথাখিনি মানুহখিনিক আজি আমাৰ অভিভাৱক বা টিচাৰ্ছসকলক লগ ধৰি ক'লোঁ, বা মোৰ যিখিনি সকিয়নি দিব লগা আছে মই দিলোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰণীয় আছে কৰিব দিলোঁ। जी हाँ, ये कहानी कहाँ की है, ये किस्सा कहाँ का है? असम का है। वहाँ पर क्या बीफ बैंड है? नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इस कहानी में कहाँ पर ट्विस्ट है और ये किस तरह से ये मुद्दा बन गया। जी हाँ दोस्तों, तेरे टिफ़िन में क्या है? असम के गोलपाड़ा स्कूल का विवाद और एक तरफा जांच के सवाल। कल्पना कीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, लंच ब्रेक होता है, बच्चे अपने अपने टिफ़िन खोलते हैं, कोई रोटी सब्ज़ी लाया, कोई बिरयानी, कोई अंडा, कोई मछली। लेकिन अचानक एक टिफ़िन पूरे ज़िले की राजनीति, पुलिस कार्रवाई और सांप्रदायिक बहस का केंद्र बन जाता है। आज बात असम के गोलपाड़ा ज़िले के हाबरघाट हाई स्कूल की। हम क्यों कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे मामले की जिसमें आरोप है कि कुछ मुस्लिम छात्रों ने एक हिंदू छात्र को बीफ खिलाने की कोशिश की। আজি মই দুপৰীয়া চুজি বনাই দিছিলোঁ। ইহঁতে পিছৰ বেঞ্চত চুজিখিনি খাই আছিল। থকা সময়ত সিহঁতৰ ক্লাছৰ 5জন ল'ৰাই আহি সিহঁতক বেয়া বস্তু মানে সিহঁতৰ গৰুৰ মাংস লৈ আহিছিল। সেই মাংস খুৱাব খুজিছিল। তেতিয়া তাহঁতে ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈ
তেহঁতৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ নাছিল, বেলেগ টিচাৰক তেহঁতে কমপ্লেইন কৰিছিল। কৰাতে টিচাৰে আহি তেহঁতক গালি দিলে, ল'ৰাকেইটাক গালি দিলে। তাহাঁতক কিবা ক'লে আৰু কোৱাৰ পিছত ল'ৰাকেইজনক মাতিবলৈ অফিচ ৰুমত লৈ গৈছে। কি কৈছে আমাৰ ল'ৰা দুজনে নাজানে। তাৰপিছত মানে আমাৰ ল'ৰাই যাই কোৱাৰ পিছত ইহঁতক মানে টিচাৰে ধমকি দিলে কি তহঁতে এইবিলাক কথা ঘৰত যাই নকবা, ক'লে ঘৰত হয়তো হুলস্থুলটো বেছি হ'ব পাৰে, এনেকে বুলি কৈছে আৰু। মোক এই হিচাপে ধৰ স্কুলত এইটো মোৰ বিভাগে আৰু কি টিচাৰৰো ভুল আৰু গাৰ্জেনৰ ভুল। কাৰণ ময়ো এজন মাতৃ, ময়ো জানো ল'ৰা ছোৱালীক কি টিফিন দিব লাগে। এইটো বস্তু অনা স্কুলত উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ। আৰু মানে যাই এই কাম কৰিছে তাৰ শাস্তি পাব লাগে। বা মোৰ মতে মাক বাপেকৰ অত্যন্তই ভুল, কাৰণ মাকে টিফিন ভৰায়, মাকে জানিব লাগিব এইটো স্কুলত দিয়া অনুচিত। जी, उसका दोस्त था या नहीं था, उसको बीफ पहले खिलाया था कि नहीं खाया था, वो बीफ खाता है कि नहीं खाता है, वो टिफ़िन में बीफ क्यों लाए, क्यों उन्होंने उस छात्र को खिलाया और क्यों उस छात्र के साथ ही वो इस तरह से बातें कर रहे थे, ये सब चर्चा होने लगी है। पुलिस ने कार्रवाई की, एक महिला सईदा बेगम को गिरफ्तार किया गया, कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में कई ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा बहुत कम हो रही है। आखिर हुआ क्या? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 जून को कक्षा 9 के कुछ छात्र, कक्षा 9 के छात्र की उम्र होगी 13 से 14 साल का, अपना टिफ़िन लेकर स्कूल पहुंचे। स्कूल में सब खाना अलाउ है, आप ला सकते हैं। असम में जो बनता है, जो वहाँ के खाना मिलते हैं, वो सब आप स्कूल में ला सकते हैं। स्कूल में कुछ ना लाने का नियम नहीं था। आरोप है कि मुस्लिम छात्र सुमित आलम अपने साथ बीफ लेकर आ गया। ये भी आरोप लगाया कि उसने और उसके कुछ साथियों ने एक हिंदू छात्र को वो खाना खिलाने की कोशिश की। 13-14 साल के बच्चे ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कहाँ से इनके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद मामला स्कूल से निकलकर पूरे इलाके में फैल गया। কৈছে মা তাহাঁতে গৰুৰ মাংস আনিছিল, আমাক খুৱাই দিব খুজিছিল বুলি কৈছে, এনেকৈ কৈছে। খুৱাই দিব খুজিছিল জবৰদস্তি কৈছে। পিছত কৈছে মই কৈছোঁ কমপ্লেইন দিয়া নাই নেকি, কৈছে গৈছিলোঁ ছাৰে নাছিল, পিছত বেলেগ ছাৰৰ আগত কৈছিলোঁ, তাহাঁতে কিবা কৈছে, কি কয় হ'ব বেলেগ ঘৰত নকওঁ। शिकायत दर्ज हुई, पुलिस पहुंची, मां सहीदा बेगम को गिरफ्तार किया गया, छात्रों को हिरासत में लिया गया और स्कूल प्रबंधन ने 5 छात्रों के निष्कासन पर विचार शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होते हैं। पहला सवाल, क्या जांच पूरी हो चुकी है? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है? क्या ये आधिकारिक रूप से साबित हो चुका है कि टिफ़िन में वास्तव में बीफ ही था? क्या असम में बीफ बैंड है या अभी जांच जारी है? क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोप और प्रमाण दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी छात्र ने किसी दूसरे छात्र पर दबाव डालकर कुछ खिलाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से गलत है, चाहे वो बीफ हो, चाहे पोर्क हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। আমি ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে, স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা বতৰা হৈ গোটেই বস্তুটো ঘটনাটো বুজি ল'লোঁ। আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু আইনগত যি ব্যৱস্থা আছে আমি সেইখিনি অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি তদন্তৰ শেষত যি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া থাকে সেইখিনি আমি ল'ম। ইয়াৰ পৰা ধূপধাৰাটো ছাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিলে ছাৰ? সেইটো মই অৱগত নহয়, এইটো চাগে আগৰ ঘটনা। এনেকুৱা ঘটনা যদি আৰু নহয়, তাৰো যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে তাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডাইৰেকশ্যন দিছে। আমি এনচিঅ' কৰিম যে এনেকুৱা ঘটনা আৰু জিলাত আৰু নহয়। আপোনালোকৰ ঘৰত ইনকুৱাৰী হ'ব ছাৰ? ইনকুৱাৰী অলৰেডি আৰম্ভ হ'লেই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দুজন ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো চাইছোঁ, কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে সেই বস্তুটো চাব লাগিব। গোটেই বস্তুখিনি পৰ্যালোচনা কৰি আমি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আইনগত গোটেইখিনি লোৱা হ'ব। किसी की धार्मिक भावनाओं या व्यक्तिगत पसंद के खिलाफ ज़बरदस्ती करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल कि 9th क्लास की एज 12-13 साल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल होती है। अगर देश में 15 साल का बच्चा किसी के साथ खिला रहा है ये सोचकर कि इसकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो जाएंगी, इससे इसका धर्म खराब हो जाएगा, इससे मुझे मज़ा आएगा, तो ये किस तरह का देश, किस तरह का स्कूल, किस तरह का एटमॉस्फेयर हमने बना दिया है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए
कि बच्चों के अंदर ये सब आ गया है, हिंदू मुसलमान। तभी तो मैंने कहा था कि ये गाना आपको सुनाया था, तो मुझे वो गाना आज के देर में कुछ भी नहीं कहा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, कहाँ हो रहा है, सब खत्म। आप सोचिए 13, 14, 15 साल का बच्चे ये हरकत कर रहे हैं तो, और उसका ये प्रभाव पड़ रहा है, तो कहाँ पर हम पिछले 11 साल से यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये एक सवाल है, इसको भी जनाब उठाओ। जी हाँ, क्या यही पूरा सच है या घटनाओं के बारे में अलग अलग पक्ष भी मौजूद हैं? तीसरा सवाल, क्या कार्रवाई सभी पक्षों को सुनकर हो रही है? समाचार रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है, विभिन्न संगठनों ने हस्तक्षेप किया है, स्कूल में बैठी हुई और मामला तेजी से सांप्रदायिक रंग लेने लगा है। और सबसे बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे हों तो हमारा उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना होना चाहिए, ना कि पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना। तेरे टिफ़िन में क्या है, सोचिए। क्या स्कूल अब इस बात पर तय करेगा कि क्या खाए, क्या हर टिफ़िन में जांचा जाए, क्या बच्चों के भोजन को धार्मिक पहचान के चश्मे में देखा जाए? अब उन माँ बाप के बारे में सोचिए कि वो 10 बार सुबह अपने बच्चे का टिफ़िन बनाते हुए सोचेंगे कि ये ब्रेड सफ़ेद रखूं, काली रखूं, भूरी रखूं, सब्ज़ी ये रखूं या ये रखूं। क्या करें हम? ये सवाल केवल असम का नहीं है, ये पूरे भारत का सवाल है। ज़िला प्रशासन ने क्या कहा समझिए। समाचार रिपोर्ट के अनुसार ज़िला आयुक्त प्रदीप तिमुंग ने स्कूल को निर्देश दिया कि छात्र अधिकतम अंडा ला सकते हैं, लेकिन मांस और मछली स्कूल में नहीं लानी चाहिए। ये फैसला विवाद के बाद लिया गया, लेकिन यहाँ भी बहस है, क्या समस्या भोजन थी या कथित ज़बरदस्ती? अगर समस्या ज़बरदस्ती थी तो समाधान भोजन पर प्रतिबंध क्यों? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जांच अधूरी है तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का इंतज़ार भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि न्याय केवल सज़ा का नाम नहीं है, न्याय निष्पक्ष जांच का नाम है। तो दोस्तों, गोलपाड़ा का ये मामला सिर्फ एक टिफ़िन का मामला नहीं है, ये कानूनी जांच, धार्मिक संवेदनशीलता, बच्चों की भविष्य से जुड़ा होता है। क्योंकि हमारा समाज में जो दोस्ती बनती है वो स्कूलों से बनती है, कॉलेज से बनती है, जो पूरी उम्र तक चलती है। अगर स्कूलों में भी इसी तरह की भावनाएं होने लगेंगी, अगर स्कूलों में भी इस तरह की खबरें आने लगेंगी, अगर स्कूलों में भी बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो समाज कैसे एक होगा? ऐसे में आपको हमने बताया है कि आरएसएस के इंद्रेश जी कह रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करेगा वो पार्टी को देश हरा देगा। ऐसा है, धीरे धीरे देश करवट ले रहा है। नौजवानों के अंदर एक भाव जाग रहा है, अगर हमने तालीम को देश की तरक्की के लिए लगाया तो एक बेहतर देश बनेगा और बेहतर हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए इसमें आए, और जिन लोगों को ये लगता भी था कि हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं चल सकते, उनके लिए भी एक चुनौती है कि वो मिलकर आए भी और मिलकर रहे भी और मिलकर चले भी। इसलिए ये कार्यक्रम इस देश की मोहब्बत का पैगाम है, नफरतें मिटाने का पैगाम है। और इस बात का भरोसा बनता है, जो लोग पार्टियां मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं, वो एक दिन हारेंगे। देखना है कब ये देश हिंदू मुस्लिम करने वालों को हराता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होगी या फिर पहले फैसला होगा और बाद में जांच? आपकी राय क्या है? क्या इस मामले में कार्रवाई उचित दिशा में जा रही है या अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए दास वतन।